Good morning, my dear respected students. Today I am here again for discussing the concept of binary file this time. Hope in the previous discussion we are talking about text files, and my dear respected students, I believe in this thing that the things will be clear, and if you face any kind of problem, I am available 24/7. Anytime you can send me a message on a WhatsApp, or you can call as per your convenience. My dear students, today I'm just talking about a binary file here. And binary file is again an important part. In case we talk about a file handling, the binary is a important part here. So what we are going to do here, my dear respected students, I'm just going to discuss the concept with the help of the different examples or different questions. Here it is. The questions will be, my dear respected students, I'm just going to discuss all these questions one by one, and I need your concentration. I need your commitment towards the direction that you all are supposed to do these things. So, my dear respected students, I'm just begin with the concept. First question says, consider the following definition of student, and here it is, the name of the list. Why I'm saying list? Because there is a square brackets will be there. That's why I'm saying that this is to be considered as a list. And here it is, the name of the list is student, and within that particular list we having a SR number, that is a student roll number. S name, that is the student name. S marks, that is the student marks. And S class, that is the student class. And my dear students, I'm just going to discuss now what we are going to do here. We are just begin with write a method D marks in Python to search and display student name and student mark. कहता है एक फंक्शन बनाइए जिसका नाम क्या है D_marks, और क्या करिए आप ये कार्य करें कि कृपया करके स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट के मार्क्स को दिखाएं फ्रॉम पिकल्ड फाइल। मतलब जो हमने पिकल जो हम इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल, उसकी सहायता से, और किस फाइल से रीड करें, student.dat where student marks is more than 90। मेरे प्यारे बच्चों, आपके चरणों में जो कंवलजीत सर की विनम्र विनती रही है, वो विनम्र विनती इस प्रकार है कि कंवलजीत सर कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमें यह समझ आया कि हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं पाइथन के अंदर, और वो प्रोग्राम है क्या सर? क्या है वो प्रोग्राम? सर वो प्रोग्राम कहता है कि आप एक मॉड्यूल बनाएंगे और उस मॉड्यूल को एक नाम, एक मॉड्यूल या एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को नाम देंगे D_marks, और डिस्प्ले करवाएंगे स्टूडेंट का नेम एंड स्टूडेंट मार्क्स, और किस फाइल से? student.dat फाइल से। और क्राइटेरिया क्या रहेगा? जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हो मेरे बच्चों, मोर देन 90, दैट इज ग्रेटर देन 90। आप कहेंगे सर ये तो अब पूरा प्रोग्राम बना के दिखाइएगा, ऐसे मत करिएगा कि सिर्फ एक फंक्शन बना के हम यहाँ दिखा दें और आप कहें कि ये तो हो गया। तो बेटा मैं क्या करूंगा, बट रिमेंबर when this question comes in your examination, you are not supposed to write each and everything, that how to write data, how to display data, and how this function works. You are supposed to only mention the content of this function, that is D_marks. No need to mention any other thing. But for explanation, I am just going to write each and everything here. So I'm just begin with the concept, my dear students, and I'm just going to write import pickle. Pickle is a module which is supposed to read and write within a binary files, as earlier we have discussed. And here it is. I'm just going to declare a function first of all, which is for a writing purpose. मतलब मेरे पास अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो मेरे पास डाटा फाइल के अंदर है, मैंने डाटा राइट भी करवाना है, उसके बाद उसके अंदर जो डाटा पड़ा है उसको रीड भी करवाना है, और उसके बाद वो फंक्शन भी बनाना है, दैट इज D_marks। कहता सर क्या करूं, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिएगा। कहता यार सबसे पहली गाइडेंस तो ये है कि आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अ फाइल। मैंने लिखा student.dat, कहता डॉट फाइल हो गई। कहता सर ठीक है। कहता सर आप रीड कर रहे हो कि राइट कर रहे हो? कहता यार राइट कर रहा हूं। तो सिर्फ W लिख देते हैं यार। कहता सर W
सर लिख तो रहे थे पर टेक्स्ट फाइल में लिख रहे थे, पर सर मुझे याद है आपने जब करवाया था तो कुछ बदलाव था वहां पे, मतलब W के साथ ना एक B डाला था, और ये लिखता क्या था, ये कहता था कि दे आर परफॉर्मिंग अ राइट ऑपरेशन बट इन अ बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल के अंदर ये राइट परफॉर्म कर रहा है। कहता आप क्या चाहते हैं, सर बार बार जितनी मर्जी बार यूजर डाटा एंटर करे उसको मैं रुकूंगा नहीं, जितना वो चाहता है वो डाटा एंटर कर सकता है। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने लिया वाइल, कहता वाइल ले लिया, कहता वाइल को कंसीडर कर लिया कि वाइल ट्रू है, कहता सही है सर बिल्कुल। कहता अब क्या किया, अब इन चारों चीजों को सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स और क्लास को एंटर करवाइए। कहता सर बिल्कुल करवाएंगे। कहता मैंने लिखा सीरियल नंबर इज इक्वल टू, कहता मैंने लिखा इंट, इंट के बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया इनपुट, और मैंने लिखा एंटर रोल नंबर इज इक्वल टू, मैंने एंटर हिट कर दिया। कहता सर अगली कार्रवाई, कहता अगले में क्या है, नेम, कहता सर एस नेम इज इक्वल टू, कहता क्योंकि अब ये तो सिर्फ स्ट्रिंग है तो इंट लिखने की जरूरत नहीं है, और मैंने लिखा एंटर नेम, कहता सर बिल्कुल सही है। कहता आपने ये डाला, एंटर हिट किया, कहता ये भी हो गया। कहता सर अब क्या है, मार्क्स करवाने हैं, कहता हाँ जी। तो कहता अब क्या किया, मार्क्स इज इक्वल टू इंट, उसके बाद मैंने लिखा हियर इट इज इनपुट, एंटर द मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने एंटर हिट किया, अब मार्क्स भी हो गए। सर क्या रह गया, सर एस क्लास रह गई। कहता सर एस क्लास इज इक्वल टू इनपुट, मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहा हूं, और मैंने क्या किया, एंटर द क्लास, कहता सर बिल्कुल सही है। कहता यहां पे आए, एंटर हिट कर दिया, इसका मतलब है अब आपने यूजर से चारों चीजें मांग ली, आपने रोल नंबर भी मांगा, आपने नेम भी मांगा, आपने मार्क्स भी मांगा, आपने क्लास भी मांगी। कहता सर मांग लिया। कहता अब इसको लिस्ट के अंदर डलवा दो। सर लिस्ट के अंदर, सर एग्जाम्पल में लिस्ट का नाम तो लिखा था स्टूडेंट, कहता सही है। कहता इस ब्रैकेट डाली, कहता बिल्कुल डाल दी। कहता सीरियल नंबर, कहता सही है सर। कहता सीरियल रोल नंबर एस आर नंबर कॉमा, कहता एस आर नंबर के बाद क्या, एस नेम कॉमा, उसके बाद क्या, एस मार्क्स, फिर क्या, एस क्लास। कहता ये सर चारों चीजें डाल दी, कहता बिल्कुल डाल दी। कहता अब डालने के बाद क्या करोगे, अब पिकल जो मॉड्यूल लिया है उसके उसकी सहायता से, उसकी हेल्प के द्वारा आप डाटा को राइट करेंगे स्टूडेंट डॉट डेट के अंदर। सर उसकी विधि क्या थी, व्हाट विल बी द प्रोसेस। सर सबसे पहले लिखा पिकल, पिकल डॉट डंप, अगर आपको याद हो तो डंप होता था राइट करने के लिए, और लोड होता था किस चीज के लिए, रीड करने के लिए। मैंने लिखा डंप, किसके किसके साथ, मैंने लिखा स्टूडेंट। कहता और जो डंप कर रहे हैं पिकल मॉड्यूल के द्वारा, वो डाटा तो स्टूडेंट से मिल रहा है, पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस फाइल में, किस ऑब्जेक्ट के द्वारा डाला जाएगा। मैंने लिखा कॉमा डाल के obj1, कहता सर डाल दिया। कहता यार ये तो सिर्फ एक का डाटा हुआ, अब तू कम से कम ये तो पूछ ले कि और डाटा चाहिए। कहता बिल्कुल सही है। मैंने लिखा ch एक वेरिएबल का नाम, लिखा इनपुट, डू यू वांट टू ऐड मोर डाटा, कहता क्या आप डाटा डालना चाहते हो। और एक मैंने ये भी पूछ लिया कि यार तू y और n में बता देना, कि अगर तू डालना चाहता है तब भी बता दे भाई, नहीं डालना चाहता तब भी बता दे। कहता अब करूं क्या, मैंने लिखा इफ ch in y एंड y। कहता सर इसका अर्थ क्या हुआ, कहता जब तक ch में y है तो वो क्या करता रहे। कहता सर ऐसे ना करें, मैं यहां पे लिख दूं इफ ch नॉट इन, मतलब कि उसके अंदर जब y ना हो तो मैं क्या कर दूं, तो मैं ब्रेक कर दूं। अगर मुझे y मिले तो चलता रहे, और अगर y ना मिले तो क्या करे, ब्रेक कर दे, मतलब कि कार्य खत्म कर दे, कि यूजर कह रहा है कि नहीं भाई मैं अब डाटा एंटर नहीं करना चाहता। कहता सर सही है। कहता अब क्या करूं, कहता यार अब तूने जो ऑब्जेक्ट लिया है ना भाई, इसको उसको क्लोज कर दे, कि ऑब्जेक्ट तेरा क्लोज हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अभी मैंने फंक्शन लिखा, इसका सिर्फ और सिर्फ अर्थ ये है कि ये आपके डाटा को राइट कर रहा है। सर किस फाइल में राइट कर रहा है, स्टूडेंट डॉट डेट के अंदर। सर किस मोड में एंटर कर रहा है, सर W में। सर W का अर्थ क्या है, राइट। सर B क्यों डाला, सर B इसलिए डाला क्योंकि B इज अ बाइनरी फाइल। कहता सर बिल्कुल सही, सर समझ आ गया। कहता अच्छा यार। कहता अब क्या किया, कहता सर अब रीड भी करवा दो, अब तो कर ही रहे हो। तो कहता यार करवा देते हैं, क्या दिक्कत हो रही है। कहता रीड, कहता किस फाइल से रीड करना चाहोगे आप।
कहता सर आपको नहीं पता क्या जो मुझसे पूछ रहे हो? कहता यार तू बता दे, तुझे शर्म आ रही है क्या इस बात में? स्टूडेंट डॉट दैट, कहता सर डाल दिया। कहता अब सर मोड कौन सा? आर बी। सर आर बी क्यों डाला? सर आर बी डाला क्योंकि रीड करना है किस फाइल को? बाइनरी फाइल को। कहता सर सही है। कहता ये तो हो गया। कहता सर अब एक एक्सेप्शन वाला केस ले लें। कहता ट्राई करे। कहता क्या ट्राई करे भाई? ट्राई करे वाइल ट्रू। मैंने लूप चला दिया वाइल की हेल्प से, और मैंने क्या बोला कि वो क्या करे, डाटा को रीड करे। और रीड करे कैसे? कैसे रीड करेगा? मैंने लिखा पिकल डॉट, मैंने यहां लिखा लोड फंक्शन, और मैंने लोड जो लिखा उसके अंदर डाल दिया obj1। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो स्टूडेंट डॉट डैट फाइल के अंदर रीड करने वाला है वाइल लूप के द्वारा, और पिकल उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि अब पिकल के अंदर स्टोर लोड फंक्शन के द्वारा, और वो ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम फाइल को ओपन कर रहे हैं रीडिंग में, उसके द्वारा वो एक डाटा को रीड करके स्टूडेंट के अंदर स्टोर कर दे। कहता सर मान गए आपकी बात। कहता अब अगर रीड हो गया तो क्या होगा? कहता सर प्रिंट लिखा और यहां आगे लिख दिया स्टूडेंट। बेटा मेरे हाँ ठीक है थैंक यू। कहता अब क्या किया? कहता सर यहां लिखा स्टूडेंट। कहता सर लिख दिया। इसका मतलब डाटा राइट हो गया क्या? सर डाटा राइट नहीं हुआ, डाटा डिस्प्ले हुआ है। कहता सर सही है। कहता अब आ गए। कहता अब कहां आए? कहता अब आ गए एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ए। कहता अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो, कोई परेशानी आए किसी भी तरीके की, तो तुम ए के अंदर स्टोर कर देना, मुझे बता देना, मैं वैसे लिख देता हूं प्रिंट ए। कहता लिख दिया। चल यार अगर कोई गलती आई तो समझ में भी आ जाएगा अभी हो क्या रहा है। मैंने लिखा obj1 डॉट क्लोज। कहता सर ये भी काम हो गया आपका। कहता इसमें क्या किया? डाटा को क्या कर दिया साहब? रीड कर लिया। कहता सर पक्की बात है डाटा रीड हो गया? कहता सर हो गया। कहता अब आओ उस फंक्शन की ओर जो मुद्दा है जिस पे आज हमने काम करना है और जिस प्रकार के क्वेश्चन हमको आएंगे। कहता सर सही है। कहता मैंने डी अंडरस्कोर मार्क्स डाल दिया। कहता सर बिल्कुल सही। कहता आप तुझे तो पता ही है यार कि उसके अंदर फाइल को तो रीड करेगा ना। सर कर रहा हूं मैं, आप गुस्से क्यों हो रहे हो? मैंने यहां लिखा ओपन। कहता किस फाइल को? कहता सर स्टूडेंट डॉट डैट को। कहता सर बिल्कुल सही। कहता सर किस मोड में करेगा ये तो बता दो। कहता सर आपको नहीं पता कि रीड करने वाले हो तो आरबी में ही करोगे और किस में करोगे? कहता सर बिल्कुल सही। कहता सर अब क्या करूं? कहता फिर एक्सेप्शन ले ले यार, कि अगर कोई गलती हो जाए तो पता लग जाए मेरे को। सर टेक आउट क्लोज मेथड आउट ऑफ एक्सेप्शन ब्लॉक। वाह क्या बात है। हाँ जी ठीक है जी। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने ट्राई के साथ अब चलाना शुरू किया, और मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार फिर लूप ले ले। कहता कैसे? मैंने लिखा ट्रू और एंटर हिट कर दिया। कहता सही है। कहता सर अब करोगे क्या? सर मैं तो रीड ही कर रहा हूं ना। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट इज इक्वल टू, कहता सर लिख लिया। अब लिखा पिकल पिकल डॉट, कहता डॉट लोड, लोड का मतलब रीड, किसके साथ? obj1 के साथ। कहता सर रीड कर लिया। कहता एक रिकॉर्ड रीड हुआ है। अब चेक क्या करोगे? अगर, सर अगर में क्या? ए स्टूडेंट। अब कहता सर स्टूडेंट करोगे, समझ नहीं आई ये बात आपकी। कहता यार अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर देखो। मैंने एंटर हिट किया। अब इस लिस्ट के अंदर अगर मैं देखूं और आपको चरणों में विनती करूं तो आप जो मेरी विनती को स्वीकार करेंगे, ये पड़ा हुआ है इंडेक्स वैल्यू 0 पे, ये पड़ा हुआ है इंडेक्स वैल्यू 1 पे, ये पड़ा है इंडेक्स वैल्यू 2 पे, और ये जो चीज पड़ी है ये पड़ी है इंडेक्स वैल्यू 3 पे। कहता सर समझ तो आई है कुछ ना कुछ। कहता अब आप विचार कर रहे हो मार्क्स की, कि मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो। कहता सर सही है। कहता फिर 2 लिख लें। कहता प्रूव करो। क्यों लिखा? कहता सर सीरियल नंबर जो रोल नंबर है वो 0 पे आ रहा है, नेम जो है वो 1 पे आ रहा है, मार्क्स जो है वो 2 पे आ रहा है, इसलिए सर 2 लिख दिया यहाँ पे। कहता सही है। कहता अब लिखा 90। कहता बिल्कुल सही। कहता कंडीशन तो तूने लगा दी यार। कहता अब दिखाना क्या है, एक मिनट देखना पहले। मैंने लिखा प्रिंट स्टूडेंट। अभी एक सेकंड, आप बोलोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि सिर्फ स्टूडेंट का नाम और मार्क्स दिखाने हैं, और अब आप पूरा दिखा रहे हो। कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैं वहां पे भी आऊंगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा EXCEPT एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एज ए, फिर कर दिया। अब मैंने किया
प्रिंट ए, वैसे ही मैंने अपनी तरफ से लिख लिया प्रिंट ए कि हाँ भी अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो बता दे भाई। तो मैंने अब क्या किया, अब मैंने लिखा obj1 डॉट क्लोज। कहता है अब ये सारा काम हो गया आपका सर, अब ये मेरा मेन फंक्शन है जिसके मुझे नंबर प्राप्त होने हैं, और जो कह रहा है आपके डाटा को रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद चेक कर रहा है कि जिन लोकेशन पे मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं उनकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, बाकी बंद हो गया। सर अभी कुछ पेंडिंग है? कहता नहीं। कहता सर है, झूठ मत बोलो। कहता क्या? कहता यार सर फंक्शन को कॉल नहीं करोगे आप, फिर चलेगा कैसे? सबसे पहले लिखा राइट। कहता सर सही है। राइट के बाद लिख लिया फिर रीड। कहता बिल्कुल सही है। कहता सर रीड के बाद लिख लिया डी अंडरस्कोर मार्क्स ही लिखा था ना मेरे ख्याल से, मार्क्स। तो कहता अब सही है सर। कहता हाँ लग तो रहा है ठीक है यार, अगर कोई गलती होगी तो फिर देखा जाएगा और क्या करेंगे फिर। कहता सर ठीक है। कहता अब क्या किया, मैंने लिखा V1। मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके चेक किया, वो मुझे कहता है कि अब ये एक्सेप्शन। कहता सर बाहर निकाल लो। कहता निकाल ली भाई। कहता और बता। कहता कि यहाँ पे, कहता सर ये इंडेंटेशन मांग रहा है। कहता अपने आप बता रहा है तुझे क्या क्या करना है। कहता सर सही है। कहता सर अब चल पड़ा। कहता ठीक है। कहता अब क्या करूं, रोल नंबर डाला 1। कहता बिल्कुल सही। अब मैंने, अच्छा आप किसी को मार्क्स वगैरह से किसी को ध्यान मत करना भाई, आप सिर्फ देखिएगा कि कवलजीत सर क्या कर रहे हैं। मैंने लिखा अमनवीर सिंह, मैंने मार्क्स डाले, मैंने डाले जी 100, एंटर कर दिया और क्लास डाल दी +2। वाई डाला। कहता और डालोगे मार्क्स? कहता सर बिल्कुल डालेंगे। सॉरी डाटा एंटर करोगे? कहता बिल्कुल करेंगे। कहता सर अब क्या किया? कहता कर दिया भव बेरी। कहता सर अब इसके मार्क्स कितने आ गए? कहता इसके मार्क्स आ गए 70। कहता सर सही है। कहता क्लास कौन सी है सर? कहता ये है। कहता सर अब और एक आधा और डाल लो। कहता डाल लेते हैं। मैंने 3 डाला। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा देव जलोटा, देव जलोटा साहब, इनके नंबर मैंने डाल दिए फॉर एग्जाम्पल 99 डाल दिए। अब मैंने एंटर किया, मैंने +2 डाला और मैंने ये करके अब मैंने कह दिया नो। कहता मैंने यार अब नहीं करना। कहता अब हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां तक तो हमारा फंक्शन बिल्कुल सही चल रहा है, जहां पे उसने डाटा को क्या किया, उसने डाटा को डिस्प्ले करवाया, और डिस्प्ले करवाने के बाद आपको कह दिया कि ये देखो जी ये डाटा आपने डाला, डाटा डिस्प्ले हो गया। कहता अब ये आ गया एंड ऑफ रन आउट ऑफ इनपुट। कहता सही है। कहता उसके बाद क्या आ गया, अगली बार कार्रवाई क्या आ गई, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। कहता कोई बात नहीं। कहता सर इसको यहाँ पे लगाओ। कहता लगा दिया। कहता अब ये हमने लिखा, ये हमने इसको एक्सेप्शन। कहता एक्सेप्शन को देखा। कहता एक्सेप्शन हमें क्या कह रहा है? कहता कि बिल्कुल सही है। कहता एक्सेप्शन तो ठीक आ रहा है। कहता सही है। सर ऊपर वाली एक्सेप्शन ई कैपिटल आएगी। ओहो सॉरी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कहता इसको प्रिंट को फिर ऐसे ही रहने दे। कहता सही है चलो। कहता फिर दोबारा देखो। अब हमने फिर चलाया। अब मैं 2 लोगों की इंफॉर्मेशन डालने वाला हूँ। वेरी गुड। मैंने यहाँ पे किया, फिर दोबारा लिख दिया अमनवीर सिंह, और सिंह डालने के बाद मैंने लिख दिया 100, एंटर किया और अब लिखा क्लास +2, फिर एंटर 8 कर दिया, फिर वाई कर दिया कि यस मेरे को यस चाहिए। फिर मैंने किया, अब मैंने लिखा लवदीप कौर, और मैंने यहाँ पे नंबर डाले 70, और मैंने यहाँ पे डाला फिर, और जैसे ही मैंने किया नो, मैंने भगवान की कृपा से बोला कि अब हुआ क्या। कहता ये दोनों इंफॉर्मेशन आपकी क्या हुई, ये आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई, और डिस्प्ले होने के बाद अब ये जो चीज अमन आ रही है, ये क्यों आ रही है, वो दिखा रहा है कि जो क्राइटेरिया ग्रेटर देन 90 है उनकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे नजर आ रही है। जिन बच्चों को मेरी बात समझ आई हो हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई है ना, कि जितना भी हमने अभी किया। अच्छा कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिएगा, आपके चरणों में विनम्र विनती है। कहता अब क्या कर रहे हैं, देखो सर। कहता अब अगली कार्रवाई देखो, अगला बिल्कुल सेम, अगला बिल्कुल सेम है। सिर्फ उस केस में हो क्या रहा है कि फाइल का नाम एम्प्लॉय डॉट डाटा आ गया, डाटा जो एंटर करवाना है वो ये करवाना है, ठीक है। और करेगा क्या, d_emp नाम की फाइल है, और उसके अंदर उनकी सैलरी दिखा दे जिनकी 20,000 to 40,000 है। सर क्या फर्क आएगा इसमें? कहता सर कुछ भी नहीं फर्क आएगा। कहता इसी प्रोग्राम में चेंज कर दे। कहता सर इसी में कर दो। मैंने यहाँ क्या किया,
मैंने यहाँ लिखा एम्प्लॉय डॉट डेट, कहता सर बिल्कुल सही। कहता यहाँ पे आके क्या कर दिया, मैंने लिखा ईएमपी और लिखा है नंबर। कहता यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आके हमने चेंज किया, लिख दिया एम्प्लॉय नंबर। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता अगली चीज क्या बदलनी है, कहता ईएमपी नेम, मैंने लिखा ईएमपी नेम और मैंने लिखा एम्प्लॉय नेम। कहता सर ये भी बिल्कुल ठीक है। कहता सर अगली कार्रवाई, कहता सैलरी। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता अब क्या किया, EMPSALARY। कहता सर यहाँ क्या लिख दिया, एंटर मार्क्स की जगह लिख दिया भाई, मैंने लिखा सैलरी। कहता सर बिल्कुल सही। कहता अब अगला क्या है, कहता सर यहाँ पे आया EMP, कहता EMPDESG। कहता सर बिल्कुल ठीक। कहता यहाँ पे क्लास की जगह लिख दिया मैंने डेजिग्नेशन। कहता सर अब क्या हुआ, कहता यार अब यहाँ पे ना स्टूडेंट की जगह तू ऐसा कर, यहाँ पे लिख ले एम्प्लॉय। कहता सर बिल्कुल सही है। कहता सर यहाँ पे क्या बदलाव होगा, कहता सर यहाँ पे लिखा EMP नंबर कॉमा EMP नेम कॉमा EMP सैलरी कॉमा EMP डेजिग्नेशन। कहता सर सब कुछ सही लिखा है। कहता लग तो रहा है भाई सही लिखा हुआ है। कहता अब क्या किया, यहां से भी आके हटाया इसको और लिखा एम्प्लॉय। कहता सर बिल्कुल सही। कहता डू यू वांट टू एंटर, वो सारा कुछ सेम। अब यहाँ क्या किया, रीडिंग करने के लिए दोबारा से लिखा एम्प्लॉय। कहता बिल्कुल सही है, फाइल का नाम एम्प्लॉय रखा है। कहता बिल्कुल ठीक। कहता सर यहाँ पे अब स्टूडेंट की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय। कहता बिल्कुल ठीक। कहता सर यहाँ डिस्प्ले क्या करवा रहा हूँ, कहता डिस्प्ले करवा रहा हूँ एम्प्लॉय। कहता बिल्कुल सही। कहता आगे चलो। कहता सर यहाँ पे अब डी मार्क्स की जगह जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है D_EMP। कहता सर बिल्कुल सही। कहता सर अब लिखा EMPLOYEE। कहता रीड करेगा, कहता सर बिल्कुल करेगा। कहता यहाँ पे स्टूडेंट की जगह यार एम्प्लॉय कर दे। मैंने कहा सर मैंने कर दिया एम्प्लॉय। अब कहता यहाँ पे बदलाव आएगा। कहता सर अभी देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। कहता EMPLOYEE। कहता सही है। कहता अब इसी केस में बिल्कुल वही चीज आ रही है, फिर 2 पे ही आ रही है एम्प्लॉय सैलरी। कहता सर ठीक है। कहता पर अब एक समस्या आ गई। कहता क्या, कहता ये हो गए 2000, ये हो गए। अब मैंने लिखा एंड। कहता एंड सर लिख लिया, हाँ जी। कहता सर अब क्या करूं, कहता इसी चीज को सर कॉपी कर देना। कहता कर लिया सर। कहता यहाँ करके पेस्ट कर देना और करना क्या, यहाँ पे 2 की जगह 4 कर देना। उसका अर्थ क्या हुआ कि अब जिनकी सैलरी अगर दोनों मैंने लिखा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000 या 20,000 से ज्यादा, और यहाँ पे आके लिखा लेस देन इज इक्वल टू 40,000, कम या 40,000 के बराबर हो, उनकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखाओ। कहता किसकी इंफॉर्मेशन, कहता एम्प्लॉय की। कहता सर बाकी सब सही है। कहता हाँ है तो सही यार, पर यहाँ पे ना एक फंक्शन में बदलाव करना है, यहाँ पे लगना है D_EMP। कहता सब ठीक है। कहता लग तो रहा है भाई। कहता चलाओ फिर। कहता सर अभी चला देते हैं। कहता चलाया। कहता चलाने के बाद किया क्या, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई, वो कहता है एम्प्लॉय नंबर डालो। मैंने डाला 101। अब मैंने क्या किया, मैंने एम्प्लॉय का नाम डाला अमन। कहता सर ठीक है। कहता सैलरी सर उसकी कितनी, कहता सैलरी सर इतनी डाल दी। कहता ठीक है। डेजिग्नेशन मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ, मैं वैसे ही अदरवाइज लिख रहा हूँ, मैंने कहा PGT। कहता और डालोगे, सर डालेंगे। कहता 102। कहता सर डाल दिया। कहता नेम क्या डाला, मैंने सर डाल दिया साहिल। कहता बिल्कुल सही। कहता सैलरी डाल यार। कहता मैंने सर सैलरी लो डाल दी। कहता ठीक है। कहता डेजिग्नेशन क्या है, सर PRT डाल दिया। कहता एक और की डाल देना यार। कहता एक और की डाल देते हैं, 103। कहता डाल दिया। कहता अब क्या डालेगा, अब लिखा गगन। कहता डाल दिया। अब क्या हुआ, सैलरी। मैंने कहा जी अब सैलरी किसकी क्या है, मैंने लिखा डिस्प्ले करेगा सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000 एंड अब मैंने किया एक की डाल दी 15,000। अब मैंने 15,000 डाल दी और डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा ये PPRT है, PPRT। कहता और डालोगे, मैंने कहा नहीं यार अब और नहीं। कहता ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कृपया करके, सबकी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, पर वो कहता है अब किसकी इंफॉर्मेशन आउटपुट में आ रही है, उनकी इंफॉर्मेशन जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000 एंड लेस देन इज इक्वल टू 40,000 है।
कहता सर एक बात ना पिछले क्वेश्चन में भूल गए। कहता क्या? कहता सर पिछले क्वेश्चन में तो लिखा था सिर्फ नाम और मार्क्स दिखाने हैं, आपने सारे दिखा दिए। कहता यार इसमें दिखा देते हैं नाम और सैलरी। कहता बिल्कुल सही है। कहता सर एक ये तो बता दो कि इसमें जो नाम है वो किस चीज पे पड़ा हुआ है? कहता नाम पड़ा है 1 पे, सैलरी पड़ी है 2 पे। कहता ठीक है। अब मैंने लिखा, अगर मैं यहाँ मेंशन किया एम्प्लॉय 1 कॉमा और लिखा एम्प्लॉय 2, अगर मैंने एम्प्लॉय 2 डाल दिया, कहता चलेगा? कहता यार पता नहीं अब चलेगा कि नहीं भाई, चला के देख लेता हूँ एक बार। कहता सही है। कहता अब एंटर हिट किया, जैसे देखा यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया। अब क्या किया 101, अब मैंने डाला साहिल, मैंने सैलरी डाली, ये सैलरी एंटर हो गई। अब मैंने डाला TGT, मैंने एंटर हिट किया, यस किया। अब मैंने एम्प्लॉय डाला 102, मैंने एम्प्लॉय का नाम डाला देवेंद्र। अब मैंने क्या किया, सैलरी 20 और 40 के बीच में लेनी है। कहता ले लेते हैं। कहता अभी हमने 35,000 दे दी। कहता अब एंटर किया। कहता अब क्या कर दिया, हमने लिखा PRT। कहता अब एंटर। कहता हाँ जी। कहता नो। कहता अब जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपको दोनों की पूरी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, बट यहाँ पे लिखा आ रहा है देवेंद्र 35,000, क्योंकि हमने वहां मेंशन किया एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2। मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई? अगर आ गई हो तो क्या करोगे? अरे वाह, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देव आया मेरा पुत्र। हाँ देव बोल मेरा बच्चा। हाँ मेरा पुत्र। सर क्वेश्चन जे बिटवीन 20,000 एंड 40,000 सीधा इक्वालिटी ऑपरेटर पर लगाना है, ग्रेट इक्वल टू वाला। एक्चुअली इतना सीखा ना, यहाँ पे एसक्यूएल नहीं कर दे पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना। हाँ आप एसक्यूएल नहीं कर दे पे ना देव। अगर एसक्यूएल कर दे होंगे तो मेरा पुत्र उत्थे बिटवीन नॉट बिटवीन चलता हुआ है ना, पर इत्थे आपा क्योंकि आपा पाइथन कर दे पे इस करके आपा दोनों वैल्यूज में इंक्लूड करके चलना है। इस करके मैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू दोनों ही लाते हैं, है ना। चलो जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, मुझे लगता है टाइम के मुताबिक। कहता ये क्या कहता है, कहता कंसीडर ए बाइनरी फाइल ट्रेन डॉट डैट कंटेनिंग डाटा एज दिस। कहता सर ये तो करली ब्रैकेट आ गई। कहता हाँ यार। कहता सर करली ब्रैकेट का मतलब ये नहीं होता कि डिक्शनरी। कहता यार होता तो वही है। कहता अच्छा। कहता इसमें अब क्या है, जो की है वो टी नंबर है और वैल्यू आपने देनी है, वैसे ही फ्रॉम, वैसे ही टू और वैल्यू रिक्वायर्ड। कहता अब क्या करो, टी अंडरस्कोर ट्रेन और सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन दिखाओ जिनका डेस्टिनेशन फगवाड़ा है। फ्रॉम का मतलब दिल्ली से चली है और पहुंचेगी कहां, टू पे, मतलब उसका डेस्टिनेशन फगवाड़ा हो गया, टू फगवाड़ा। कहता सर अब इसी में बदलाव करवा दो ना। कहता यार इसी में करवा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। कहता सर अब क्या किया, सर सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा ट्रेन इज इक्वल टू करली और करली। कहता ये क्या किया। कहता सर ये डिक्शनरी बना दी। कहता अच्छा जी। कहता अब फाइल कौन सी ओपन की। कहता सर फाइल ओपन कर दी ट्रेन डॉट डैट राइट मोड में। कहता सर सही है। कहता अब डालोगे क्या, इसमें क्या डालना चाहते हो। कहता सबसे पहले वैल्यू मांग लेता हूं यार एक एक करके। कहता मांग लो सर, फिर वैल्यू अगर मांग रहे हो। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको, जिनको आ रही है वो हैंड रेज करके एक बार बता दीजिए प्लीज। जिनको मेरी आवाज आ रही हो वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। इसका मतलब है मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। अच्छा आ रही है, ठीक है सॉरी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ट्रू में डाला और अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने लिखा टी नंबर। कहता टी नंबर। कहता यार यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह एंटर कर देते हैं ट्रेन नंबर। कहता बिल्कुल सही है। कहता यार अब यहाँ पे क्या करूं। कहता यहाँ पे यार कर दे फ्रॉम। कहता बिल्कुल सही है। कहता सर इसको भी हटाओ फिर सारे को, कि हम क्या करेंगे यहाँ पे। कहता सिंपल फ्रॉम ही लिख लेते हैं। कहता ठीक है लिख ले भाई, तेरी मर्जी है, जो मर्जी लिख। कहता उसके बाद यहाँ क्या करेंगे। कहता सर यहाँ पे ना टू ही लिख लेते हैं। कहता सर सही है। और इसको हटा देते हैं इंट को। उसका अर्थ क्या है कि वो तो आएगा तो हमारी कोई सिटी का नाम ही ना स्ट्रिंग ही आएगा। कहता सर टू लिख लेते हैं। कहता सर सही हो गया, ये ब्रैकेट भी हटा दो। कहता सही है। सर ये तो चाहिए ही नहीं फिर। कहता नहीं यार ये तो चाहिए ही नहीं। कहता अब क्या चाहिए फिर। कहता अब लिखा टी नंबर
और यहाँ पे अब क्या डाला, अब मैंने की बतानी है, मैंने ये लिखा की क्या है उसकी, ये चीज, और वैल्यू क्या है उसके अंदर, वैल्यू ये है। कहता सर बिल्कुल सही। कहता सिमिलरली मैंने फिर लिखा फ्रॉम। कहता फ्रॉम के अंदर की क्या है, कहता फ्रॉम के अंदर की फ्रॉम ही है। कहता सही है। कहता इज इक्वल टू, कहता अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू क्या आएगी, जो फ्रॉम के पास आएगी। कहता वो भी ठीक है। कहता अब क्या लिखा, टू। सर की क्या है, सर की तो टू ही है। कहता सर बिल्कुल ठीक है। कहता सर अब उसके अंदर आएगा क्या, कहता वैल्यू आएगी कहां से, टू से। कहता बात समझ आ गई। कहता आ गई, कहता बिल्कुल आ गई। कहता सर अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो एम्प्लॉय वाला लिखा है, क्योंकि वैल्यूज पास हो चुकी हैं उसके अंदर। कहता सही है। कहता सिर्फ बदलाव क्या करो, कहता ये डंप के अंदर ना यहाँ पे आप लिख दो TRAIN ट्रेन। कहता सर लिख दिया। कहता वो ऑब्जेक्ट वैसे ही चलेगा, कहता बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बाकी सारा कुछ इस फंक्शन के अंदर वही सेम चल रहा है कि सारा आपका रीड हो गया, मल्टीपल टाइम्स आपसे डाटा मांग रहा है। कहता अब क्या करूं, कहता रीड में आ जाओ। कहता सबसे पहली चेंज क्या, कहता सर सबसे पहली चेंज यहाँ पे ट्रेन कर देना। कहता सर कर दी। कहता अब कोई बदलाव इसमें आएगा, कहता सर बदलाव कुछ खास नहीं है, सिर्फ आप क्या करते जाएंगे, वैल्यूज तो आ गई हैं, अब हमने ट्रेन डाल दिया यहाँ पे। कहता आप डिस्प्ले भी क्या करवा रहे हो, कहता सर डिस्प्ले भी आप क्या करवा रहे हो, ट्रेन। कहता सर बिल्कुल सही। कहता अब बाकी सब ठीक है, कहता सर बिल्कुल सही। सर एम्प्लॉय की जगह कोई बदलाव आने वाला है क्या, कहता यार तेरी मर्जी है, वहां लिखा हुआ है ट्रेन। कहता सर ट्रेन लिख दिया। कहता सर यहाँ पे क्या किया, फाइल को दोबारा किया TRAIN। कहता बिल्कुल सही है। कहता सर अब क्या होगा, कहता यार अब ना ये रीड, तेरा डाटा तो उसने रीड कर लिया। कहता सर बिल्कुल सही है। कहता डाला ट्रेन। मेरे को एक मैसेज आया, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट बस। कहता ट्रेन, कहता डाल दिया सर। कहता अब क्या है, कहता अगर ट्रेन, कहता अगर ट्रेन, कहता क्या अब क्या आएगा, कहता अगर ट्रेन, उसके अंदर की क्या है, टू। अब मैं टू चेक कर रहा हूं कि टू क्या है, और मैंने टू के आगे क्या मेंशन किया, मैंने लिखा बेटा, मैंने लिखा मेरी क्वेश्चन में इज इक्वल टू फगवाड़ा। फगवाड़ा, अगर वो फगवाड़ा हो तो क्या करे, स्क्रीन पे दिखा दे, क्या दिखाए, इंफॉर्मेशन। सर किसकी इंफॉर्मेशन, ट्रेन की इंफॉर्मेशन। सर अब क्या किया, कहता यहाँ पे आए और यहाँ पे आके लिखा ट्रेन। कहता सर लिख दिया। क्या सर अब एक मैसेज भी चेक कर लो, कोई गलती तो नहीं की। सर प्लीज चेंज द नेम ऑफ डिक्शनरी इन डिफाइनिंग की वैल्यू पेयर इन राइट FN। ये कहाँ पे भाई, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। कहता ट्रेन आ गया, कहता सही है सर ये। कहता ट्रेन है, ट्रेन है, ट्रेन है, कहता ट्रेन है, और चलते गए चलते गए चलते गए ट्रेन है, कहता ट्रेन है, और चलते गए ट्रेन। भाव कोई अगर प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे सर बता दो। कहाँ राइट पे, में जहाँ पे आपने टू फ्रॉम और T नंबर लिखा है वहाँ पे ट्रेन नहीं आएगा डिक्शनरी वाले में। ये वाला जो पोर्शन, ये वाला कह रहे हो, ये ट्रेन डॉट डैट लिख दिया, वाइल ट्रू आ गया, आगे सर इनपुट लेने के बाद सर नीचे उसके फोर्थ लाइन पे ये T नंबर, सर ये ठीक डंप है, के ऊपर। ये वाला हाँ जी सर, वह ट्रेन 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 नहीं आएगा तीनों में। किस चीज के अंदर, जो मैंने, अच्छा ये T T नंबर नंबर जो ले रहे हो फ्रॉम आप? और के टू की पहले। जगह। अरे हाँ वाह, जी सॉरी सॉरी यार, सॉरी, वेरी गुड, ग्रेट। मैंने यहाँ पे लिखा हेयर इट इज ट्रेन। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता सर यहाँ पे भी लिखा ट्रेन। कहता सर बिल्कुल ठीक है। कहता सर यहाँ पे भी लिखा ट्रेन। कहता अब सर जल्दी से रन कर दो। कहता अब रन किया। कहता अब क्या आ गया भाई, अब क्या गलती हो गई, कहता यहाँ पे गलती जो की, डबल कोट्स इस प्रकार, सिंगल तो सिंगल, डबल तो डबल। कहता सर सही है। कहता अब क्या किया, कहता सर अब इसको बोला कि आना जरा साइड पे। कहता ये आ गया साइड पे। कहता अब मैंने डाला ट्रेन नंबर 23456, एंटर हिट किया। फ्रॉम आ कहां से रही है, कोलकाता, कोलकाता, को तेरी कोलकाता, और जाएगी कहां तक, दिल्ली तक जाएगी। कहता ओ, कहता अब ये क्या आ गया, टी ट्रेन, TL, सर टू पे सर आते डी ई कैपिटल है। सर लोअर केस आएगा कहाँ पे, सर यहाँ। ये T नंबर तो बिल्कुल सही है, फ्रॉम भी सर बिल्कुल। टी टी एन ओ पे सर भी आपने ट्रेन वो में किया है।
कहाँ पे लाइन नंबर बोलो कौन सी? सर डम